was the chairman of this commission? We had discussed in the last class. He was काफी आप कह सकते he was an anti-Indian, in which the purpose was to control the Indian in July 1905. पार्टीशन ऑफ बंगाल केम इनटू इफेक्ट, इस दिन से लागू हो गई कि बंगाल विल बी डिवाइडेड। तो कर्जन का रीजन टू पार्टीशन बंगाल उसके नेचर के ऊपर में स्प्लिट हुआ था। कांग्रेस as well as we have discussed the difference between moderates and extremists, and after discussing all this we had also discussed Curzon's policies, what were some of the important reactionary policies of Lord Curzon which ultimately led to the nationalistic movement in India. And we discussed some of the important Curzon's policies like young husband mission to Tibet. We also talked about his commission for investigating the floods in India on the name of Anthony MacDonald Commission. Also, we had discussed Curzon's reform in education as Indian University Act 1904, in which we understood that in order the British government or Lord Curzon himself wanted to control the Indian universities because according to him Indian universities were factory of sedition, right? We had talked about the Indian University Act 1904. Who was the chairman of this commission? We had discussed in the last class. तो जल्दी बता देंगे who was the chairman of this commission. Hello everybody, welcome to CUT PG history class. लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एज वेल एज द डिफरेंस बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, एंड ऑल्सो डिस्कस द differences between why moderates and extremists split from Indian National Congress, right? Now after that we were discussing the Curzon policies. We all know Lord Curzon was the Viceroy of India. He was one of the youngest Viceroy of India and a very reactionary Viceroy, जिसका मतलब होता है एंटी इंडियन Viceroy. वैसे तो सारे Viceroy ही एंटी इंडियन है, but he was known for his very रिएक्टिव और आप कह सकते हैं एंटी इंडिया रिमार्क्स, लाइक ही बिलीव्ड इन ब्रिटेन सिविलाइजिंग मिशन इन इंडिया। इसका मतलब होता है कि वी इंडियन लास्ट क्लास डिस्कस द लिस्ट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, वी डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, एंड आफ्टर दैट वी वर डिस्कसिंग कि 1890s वाला जो पीरियड था उसमें नेशनल मूवमेंट की जो गतिविधियां थी वो कैसे आगे बढ़ने लगी, क्योंकि कुछ कुछ रिएक्शनरी पॉलिसीज़ आए थे। जैसे कि एक बंदा आया था जिसका नाम है लॉर्ड कर्जन, उन्होंने काफ़ी आप कह सकते हैं ही वॉज एन एंटी इंडियन बिकॉज उसका स्टेटमेंट है द कांग्रेस इज टॉटरिंग टू इट्स फॉल एंड he would be happy to assist in its peaceful demise. He also believed in the civilizing mission of the British in India. According to him, Indians are barbarians, uncivilized race which need to be civilized. So these were the beliefs of the reactionary Lord Curzon, one of the youngest viceroy of India, right? So in the reactionary policies of Lord Curzon, we were discussing about his different policies like his mission to Nepal, young husband mission to Tibet, as well as famine commission known as MacDonald Commission. उसी तरह से we will discuss the formation or setting up of Indian University Act, which brought its or the you can say the passing of Indian Universities Act in 1904. Indian University Act 1904 was headed by which person? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स से बता दें, दिस कमीशन वॉज हेडेड बाय हु, ठीक है। एंड वी आर डिस्कस इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, यस, इसका नाम बस इतना याद रखना है, यंग हस्बैंड मिशन। द नेम ऑफ द मिशन टू तिब्बत इज यंग हस्बैंड मिशन। ऐसा बस इतना उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस इतना जान करेंगे। लॉर्ड रेलिक नहीं है, ही इज़ नॉट अ लॉर्ड, नाम है थॉमस रेली। थॉमस रेली, क्लियर। नाउ यंग हस्बैंड वाले में बस इतना याद रखना है कि उन्होंने
एक एक्सपेडिशन भेजा था, कहाँ, तिब्बत में, किसके द्वारा, लेड बाय यंग हस्बैंड हु वाज अ मिलिट्री जनरल। क्या पर्पस था, ताकि तिब्बत तिब्बत रशिया के इन्फ्लुएंस में ना आ जाए, वो चाइनीज़ इन्फ्लुएंस ज़्यादा ना आ जाए, इसलिए क्या करे थे वो, ब्रिटिश इंडिया के जो बॉर्डर्स है उसको सिक्योर करने की कोशिश थी, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने यंग हस्बैंड्स के द्वारा लीड की हुई एक मिशन भेजा था, जहाँ पे दे फोर्स तिब्बत टू एंटर इनटू अ ट्रीटी विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो आएंगे इसके बारे में बाद में, व्हेन वी डिस्कस डिफरेंट ट्रीटीज़। अभी इतना याद रखना है। वी आर डिस्कस्ड the passage of Indian University Act 1904, in which the purpose was to control the Indian universities by the British government। ऐसा क्यों कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्यों इंडियन यूनिवर्सिटी पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इनके मुताबिक जो इंडियन यूनिवर्सिटी हैं दे आर बिकमिंग फैक्ट्री ऑफ सेडिशन। यहाँ पे इंटेलेक्चुअल्स कम और रेवोल्यूशनरीज या रेडिकल्स ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं। क्लियर। And lastly, today we were discussing, we will discuss the most reactionary policy of Lord Curzon, that is the partition of Bengal। So आज का हमारा टॉपिक ही है partition of Bengal। Now few timelines to be noted for partition of Bengal। पहला टाइमलाइन हमें नोट करना है जुलाई 1905। जुलाई 1905 क्या हुआ था इस दिन, आप बिल्कुल कह सकते हैं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है दे अनाउंस्ड इट टू पार्टीशन बंगाल। तो आप बिल्कुल कह सकते हैं अनाउंसमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। So in July 1905 the British government announced that it want to partition Bengal। उसी तरह से नेक्स्ट टाइमलाइन है, दिस वन इज़ इम्पॉर्टेंट, टाइमलाइन है अक्टूबर 16 1905। आप पूछेंगे सर क्या हुआ था, ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल करने का जो डिसीजन था इस दिन केम इनटू इफेक्ट। तो आप बिल्कुल कह सकते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल केम इनटू इफेक्ट, इस दिन से लागू हो गई कि बंगाल विल बी डिवाइडेड। तो याद रखना ये डेट अक्टूबर 16 1905। क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर इम्पॉर्टेंट टॉपिक फर्दर। जैसे ही पार्टीशन ऑफ बंगाल इम्प्लीमेंट हो गया, कब, अक्टूबर 16 1905 को, उसी से क्या लॉन्च हो गया, स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ कौन सा मूवमेंट स्टार्ट कर दिया गया, स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। ये याद रखना है, इसको आप कह सकते हैं दिस इज ऑल्सो नोन एज एंटी पार्टीशन मूवमेंट। क्लियर। Now in our next few topic we will discuss what were the modus operandi, what were the features of Swadeshi boycott movement and what impact it had on the Bengal। Right, now let's start। तो स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट को आप एंटी पार्टीशन मूवमेंट भी कह सकते हैं। क्यों लॉन्च किया गया था आपको याद रखना है, एज ए रिजल्ट ऑफ, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कौसानी की टू डिक्रीज सेडिशियस एक्टिविटी कैलकाटा यूनिवर्सिटी में खासकर। वेरी गुड, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1905 का 1904 का आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। ठीक है, नाउ लेट्स कम बैक टू पॉब। याद रखेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल को हम लोग पॉब बोलने वाले हैं, तो चौंकना नहीं है, इट्स पार्टीशन ऑफ बंगाल। नाउ स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट के बारे में बिल्कुल आप पहली बात लिख लेंगे कि ये फर्स्ट मेजर मास मूवमेंट है आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। Swadeshi and boycott is the first major mass movement after the revolt of
1857, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज वाई डिड मिस्टर कर्जन वॉन्ट टू डिवाइड बंगाल, क्या मकसद फुलफिल होता है कर्जन का बंगाल को डिवाइड करने में, तो आइए जानते हैं। नाउ now you're seeing a rough sketch of map of India, right? Now आप देख सकते हैं बंगाल इन 1905, जब पार्टीशन नहीं हुआ था तब बंगाल में कौन कौन से टेरिटरी थे, खासकर आप देखेंगे वेस्ट बंगाल, करेंटली वेस्ट बंगाल, करेंटली ईस्ट बंगाल, करेंटली बिहार, करेंटली झारखंड, करेंटली ओडिशा, करेंटली parts of Assam. Clear? So these were the present Indian states, and as well as the country itself, Bangladesh was the part of erstwhile Bengal. Now कर्जन के मुताबिक कर्जन का प्रोटेक्स, तो आप क्या कह सकते हैं कि कर्जन का रीज़न टू पार्टीशन बंगाल, ये हमारा रीज़न नहीं है, कर्जन का रीज़न है। कर्जन के मुताबिक बंगाल इज़ अ टू लार्ज अ प्रोविंस। कर्जन कह रहा है बंगाल इज़ अ टू लार्ज प्रोविंस टू रूल, इसको आप अच्छे से एडमिनिस्टर नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इसको डिवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड पार्टली कर्जन की बात गलत भी नहीं है, आप देख सकते हैं इतने सारे प्रेजेंट इंडियन स्टेट प्लस कंट्री बंगाल के पार्ट आते थे। अराउंड 8 करोड़ पीपल वर लिविंग इन बंगाल एट दैट टाइम, सो इट वॉज अ ह्यूज प्रोविंस, ठीक है। तो आप कह सकते हैं तो इसी वजह से कर्जन वांटेड टू पार्टीशन बंगाल। बट द रियल रीजन, लेट्स फोकस ऑन द रियल रीजन टू पार्टीशन बंगाल। रियल रीजन आप देख रहे हैं कि राइज ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी या फिर सेडिशियस एक्टिविटी ब्रिटिश के नज़रों में उनका बढ़ाव हो रहा है। जैसे आपने देखा था कैलकाटा कॉरपोरेशन एक्ट को पास किया गया था 1899 में, उसमें भी इंडियन मेंबर्स या फिर इलेक्टेड मेंबर्स को घटा दिया गया था। उसी तरह इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पास की गई थी, सब क्या करने के लिए, सेडिशन या फिर रेवोल्यूशनरी या रेडिकल एलिमेंट्स को सप्रेस करने के लिए। तो रियल रीजन टू पार्टीशन बंगाल क्या था, टू सप्रेस नेशनल मूवमेंट, एंड दूसरा था सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, आप कहेंगे सर ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी क्यों लिख रहे हैं हम लोग, इसमें था कि आपको पता ही है ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये बहुत ही अच्छा मोडस ऑपरेंडाई था, मतलब कि मेथड ऑफ वर्किंग था क्या, कि जो हिंदूज़ हैं और मुस्लिम्स को डिवाइड करके आराम से इनको बीच में लड़ा दो और अपने आराम से रूल करो। तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी में ब्रिटिश क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, इनके लिए एक सेपरेट प्रोविंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, किसके लिए, मुस्लिम्स के लिए। और कौन सा प्रोविंस का नाम क्या रहेगा, ईस्ट बंगाल, विथ इट्स कैपिटल क्या रहेगा, ढाका। क्लियर? सो दिस वाज अ रियल रीजन। पहला था नेशनल मूवमेंट या फिर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी को कम करना, और दूसरा था डिवाइड एंड रूल पॉलिसी में मुस्लिम को खुश करना है। मुस्लिम को कैसे खुश कर रहे हैं, बाय गिविंग देम अ सेपरेट प्रोविंस ईस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल याद रखेंगे ये एक मुस्लिम मेजॉरिटी है, विथ इट्स कैपिटल ढाका। क्लियर रहेगा? तो ये कर्जन का रियल रीजन था टू डिवाइड बंगाल। नाउ आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखेंगे जो बंगाल का जो डिवीज़न होने वाला है वो टू पार्ट्स में डिवीज़न होने वाला है, एक ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज और दूसरा हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। रिलीजन में आप देख रहे हैं हिंदूज एंड मुस्लिम्स। मुस्लिम्स में आप एरिया आपको पता है ईस्ट बंगाल मुस्लिम मेजॉरिटी है, और हिंदूज़ में आपको आ जाएगा
वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा प्लस पार्ट्स ऑफ आसाम। क्लियर? तो ये ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन है। उसी तरह ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज देखेंगे तो जो बंगाल है वो बंगाली स्पीकिंग एरिया है। उसी तरह जो बिहार और झारखंड है वो हिंदी स्पीकिंग एरिया है। उसी तरह उड़ीसा है ओरिया स्पीकिंग, एंड आसाम बंगाली प्लस आसामीज। तो आप देख सकते हैं बंगाल को डिवाइड करना दो वे में डिवाइड किया जा रहा है, एक ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, एक ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। क्या अभी तक हमें क्लियर है कौसानी? अगर हमें क्लियर है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आर वी क्लियर टिल नाउ द रीजन फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल? ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। अब क्या हुआ, जो स्वदेशी एंड शॉर्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट, इसको कौन लीड कर रहे थे? लेड बाय मॉडरेट लीडर्स। मॉडरेट लीडर्स कब से कब? 1905। और आप कह सकते हैं कि पहले अनाउंसमेंट 1905 के टाइम में मॉडरेट लीडर्स लेड बाय कौन? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। 1905 तक आप कह सकते हैं कि सुरेंद्र नाथ बैनर्जी इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे। ही वॉज ए मॉडरेट लीडर थ्रू हिज न्यूज़पेपर जिसका नाम है बंगाली। ये याद रखना है, थ्रू हिज न्यूज़पेपर बंगाली। नाउ अब क्या हुआ, फाइनली द मूवमेंट स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बंगाल। आप देख सकते हैं इसी में याद रखना है कि 1905 कांग्रेस सेशन हमने पहले ही पढ़ा है, कहाँ हुआ था? बनारस। उस किसके अंडर में? जी के गोखले। उसमें अब क्या लिखेंगे, उसमें रेजोल्यूशन पास किया गया था जिसमें सपोर्ट किया गया किसको? स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट को। क्लियर रहेगा? पहला सपोर्ट किया गया स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट को, और दूसरा बिल्कुल कह सकते हैं कि पार्टीशन ऑफ बंगाल को क्या किया गया? क्रिटिसाइज किया गया। आप ये मूवमेंट देख रहे हैं ड्यूरिंग पार्टीशन ऑफ बंगाल में, ये साइड बाय साइड चलता जा रहा है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। नाउ क्या हुआ, नेक्स्ट कांग्रेस सेशन 1906 अंडर दादा भाई नरोजी, कहाँ? एट एपी सेंटर ऑफ द मूवमेंट, कहाँ? कैलकाटा। जिसमें पहली बार क्या बोला गया? स्वराज इज द, स्वराज टर्म को यूज़ किया गया। क्लियर रहेंगे? नाउ आप इसमें क्या कहेंगे, इसमें कहा जाएगा कि इसमें there was a demand by the extremists for passive resistance, जिसमें बॉयकॉट ऑफ गुड्स, बर्निंग ऑफ गुड्स, बॉयकॉट ऑफ कोर्ट्स, बॉयकॉट ऑफ स्कूल्स, बॉयकॉट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, बॉयकॉट ऑफ पुलिस स्टेशन एटसेट्रा। क्लियर रहेगा? तो ये साइड बाई साइड हमें याद रखना है। नाउ तो इसके बाद ही मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स में क्या हो गया? डिफरेंसेस आ गए, जिसके वजह से स्प्लिट हो गया। और स्प्लिट हो कहाँ हुआ? सूरत सेशन में 1907। प्लीज़ रिमेंबर द रीज़न फॉर स्प्लिट वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल, कि स्वदेशी एंड बॉयकॉट के ऊपर में हो रहा हुआ था। पहला रीज़न था कि क्या स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट को बंगाल के बाहर ले जाना चाहिए या नहीं। मॉडरेट्स इसके फेवर में नहीं थे, एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट, स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट शुड ऑकर या स्प्रेड करना चाहिए पूरे इंडिया में, राइट। मॉडरेट्स ये नहीं चाहते थे, और वो चाहते थे एक्सट्रीमिस्ट की पैसिव रेजिस्टेंस को ज़्यादा वैल्यू दिया जाए। ठीक है, तो ये दो रीज़न की वजह से स्प्लिट कर गए। नाउ ये हमें याद रखना है। क्लियर? ठीक है, आप सही कह रहे हैं, बनारस में हुआ था। नाउ धीरे धीरे ये मूवमेंट स्प्रेड कर गया। आप देखेंगे मूवमेंट स्टार्टेड स्प्रेडिंग फ्रॉम बंगाल, बंगाल से ये मूवमेंट स्प्रेड करके कहाँ चला गया? यहाँ बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आ गया।
बॉम्बे प्रेसिडेंसी में बिल्कुल याद रखेंगे, स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट वाज लेड बाय बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद आप करेंगे मूवमेंट दिल्ली भी पहुंच गया, दिल्ली में द मूवमेंट वाज लेड बाय सैयद हैदर राजा, क्लियर रहेगा। उसी तरह मूवमेंट स्प्रेड टू पंजाब, पंजाब में इट वाज लेड बाय लाला लजपत राय, ठीक है। उसी तरह मूवमेंट स्प्रेड इन मैड्रास लेड बाय चिदम्बरम पिल्लई। क्या हमने सारा नाम नोट कर लिया है? बिल्कुल। स्वदेशी एंड बॉयकॉट दे आर पार्ट ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस। बॉयकॉट मतलब आपको पता ही है कौशानी कि सारे फॉरेन गुड्स, फॉरेन लीकर, फॉरेन सॉल्ट, सभी चीज़ का बॉयकॉट करना है। पैसिव रेजिस्टेंस में बॉयकॉट ऑफ एवरीथिंग आ जाएगा, तो इट इज़ वेरी मच अ पार्ट ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस, ये हमें याद रखना है। क्या हमें सारे नाम हमें रजिस्टर हो गए? बंगाल में कौन, महाराष्ट्र में या बॉम्बे प्रेसिडेंसी में कौन, या दिल्ली में कौन, मद्रास प्रेसिडेंसी में कौन, पंजाब में कौन? सारे नाम हमें क्लियर हैं कौशानी अभी तक? वेरी गुड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू फर्दर टॉपिक। नाउ आप देखेंगे ये जो मूवमेंट स्प्रेड किया, ये वन ऑफ द, आप कह सकते हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट माइलस्टोन्स इन इंडियन नेशनल मूवमेंट, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे फीचर्स निकल कर आए। आप बोलेंगे सर क्या कह रहे हो आप, काफ़ी फीचर्स निकल के आए मतलब क्या हुआ? मतलब इसमें जब आप कह रहे हो सर बॉयकॉट, जब बॉयकॉट हो रहा है सभी चीज़ों का जो कि एनीथिंग ब्रिटिश, तो इसका मतलब उसके ऑपोजिट में भी चीज़ें क्रिएट होंगी, मतलब स्वदेशीकरण होगा, मतलब आप कह सकते हैं एडॉप्शन ऑफ स्वदेशी और इंडिजीनियस गुड्स एंड प्रोडक्ट्स भी होगा। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पे बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स हो रहा है, तो पहला फीचर्स क्या है? बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स। उसी तरह अगला फीचर क्या है? स्कूल्स, बॉयकॉट ऑफ, जो ब्रिटिश के द्वारा गवर्नमेंट स्कूल है उसको भी बॉयकॉट है, तो आप कह सकते हैं स्वदेशी एजुकेशन। फिर तो उसके जगह पे स्वदेशी एजुकेशन प्रमोट करना है कि नहीं हमें, इसलिए स्वदेशी एजुकेशन। उसी तरह से ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़, जहाँ पे सॉल्ट बन रहा है या फिर कपड़े बन रहे हैं या फिर कोई और भी चीज़ें बन रही है, तो उसके जगह पे भारतीय भी अपने कुछ सामान बनाएंगे, इंडस्ट्री बनाएंगे, तो आप बिल्कुल कह सकते हैं इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज़। देखेंगे आप सब चीज़ स्वदेशी हो रहा है ना, इंडिजिनस इंडस्ट्रीज़, या आप कह सकते हैं इंडियनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। उसी तरह आप बोलेंगे और किस फील्ड में स्वदेशियन बॉयकॉट मूवमेंट का इम्पैक्ट है, इन्फ्लुएंस है? आप कह सकते हैं आर्ट एंड कल्चर में, क्लियर। तो आप देख रहे हैं किस में इम्पैक्ट है? आर्ट एंड कल्चर में। आप देखेंगे पहले इंग्लिश की चीज़ें अडॉप्ट करते थे हम लोग, अब क्या कर रहे हैं, इसमें स्वदेशी चीज़ें अपना रहे हैं। आप आगे पढ़ेंगे हम लोग स्वदेशी पेंटिंग अपना रहे हैं। हमारा थीम इंडियन पेंटिंग्स था, पहले ब्रिटिश थीम था हमारा, ठीक है। उसी तरह से आप क्या कह सकते हैं कि और हमने किस चीज़ में प्रोग्रेस किया, और या फिर इसके और क्या फीचर्स हैं? तो आप कह सकते हैं सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स। So right now we are discussing the different features or डिफरेंट फीचर्स या फिर इम्पैक्ट ऑफ स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट, जैसे कि स्वदेशीकरण ऑफ एजुकेशन, स्वदेशीकरण ऑफ इंडस्ट्रीज, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स मतलब अडॉप्शन ऑफ स्वदेशी कपड़े जैसे कि खादी कपड़े, उसी तरह सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स, उसी तरह स्वदेशीकरण ऑफ आर्ट एंड कल्चर। एक एक करके जानते हैं, इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स में ज़्यादा कुछ करना है नहीं, इसमें आप याद रखेंगे क्लोथ्स का बॉयकॉट। इंग्लैंड में जो क्लोथ्स बनती थी वो बनती थी मैनचेस्टर में,
तो बिल्कुल कह सकते हैं बॉयकॉट ऑफ मैनचेस्टर क्लोथ। जो नमक बनती थी वो बनती थी लिवरपूल में, ये सब शहर है इंग्लैंड में, तो बॉयकॉट ऑफ लिवरपूल सॉल्ट, तो ये हमें याद रखना है, बॉयकॉट ऑफ मैनचेस्टर क्लोथ, बॉयकॉट ऑफ लिवरपूल सॉल्ट, क्लियर रहेगा। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट है हमारा स्वदेशी एजुकेशन। तो लेट्स मूव ऑन टू एजुकेशन। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एजुकेशन के बारे में हमें पढ़ना है ये, ठीक है। नाउ इसमें क्या पढ़ना है हमें, एक नेशनल सिंस स्टूडेंट्स इन मास, इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स एक साथ मिलकर क्या कर रहे हैं, ब्रिटिश के स्कूल्स या गवर्नमेंट स्कूल्स को बॉयकॉट कर रहे हैं। तो ये स्टूडेंट्स कहीं तो जाएंगे पढ़ने, तो इनके लिए एक स्कूल बनाया गया या फिर कॉलेज बनाया गया जिसका नाम है बंगाल नेशनल कॉलेज। तो बिल्कुल याद रखेंगे, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बंगाल नेशनल कॉलेज, दिस इज पार्ट ऑफ या इम्पैक्ट ऑफ स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट, क्लियर रहेगा। नाउ प्लीज रिमेंबर, बंगाल नेशनल कॉलेज के जो फर्स्ट प्रिंसिपल थे, फर्स्ट प्रिंसिपल वॉज औरबिंदो घोष, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। Aurobindo Ghosh was the first principal of Bengal National College. Now, please remember this college was inspired from Shanti Niketan. रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन से ये कॉलेज इंस्पायर्ड था, क्लियर रहेगा। उसी तरह से एजुकेशन, स्वदेशीकरण ऑफ एजुकेशन में याद रखेंगे नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, ये किसके द्वारा सेटअप किया गया था, सतीश चंद्र मुखर्जी। तो प्लीज नोट, मुखर्जी के जगह पे चैटर्जी कर देंगे। नेक्स्ट इज SCM, मुखर्जी रखेंगे, SCM होता है। तो नेक्स्ट इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, किसके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया है, सतीश चंद्र मुखर्जी। इसके साथ साथ और क्या बनाया गया है, बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट, बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट, ठीक है। सो दीज वेयर द कॉलेजेस स्कूल सेटअप ड्यूरिंग द स्वदेशीकरण कैंपेन इन स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। आपको ये जानने ज़रूरी है कि वही नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन और बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट या बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सेम, ये दोनों को मर्ज करके ही जादवपुर यूनिवर्सिटी बनाया गया है। तो ये आप जान के रखेंगे, प्रेजेंटली जादवपुर यूनिवर्सिटी इज फॉर्म बाय मर्जिंग नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एज वेल एज बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट, क्लियर रहेगा। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं, एक फीचर था फॉर्मेशन ऑफ वॉलंटियर ग्रुप्स। आप स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट के फीचर्स पढ़ रहे हैं, उसमें एक फीचर था फॉर्मेशन ऑफ वॉलंटियर ग्रुप्स। याद रखेंगे, एक वॉलंटियर ग्रुप बनाया गया था जिसका नाम है स्वदेश बांधव समिति, स्वदेश बांधव समिति। एंड हु स्टार्टेड और हु फाउंडेड दिस, बाय अश्वनी कुमार दत्ता, अश्वनी कुमार दत्ता। तो याद रखेंगे, वॉलंटियर ग्रुप्स वर फॉर्म्ड बाय अश्वनी कुमार दत्ता नोन एज स्वदेश बांधव समिति। आप बोलेंगे सर इसको क्यों बनाया गया था, ये पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस बढ़ाने के लिए, लोगों को पॉलिटिकली एजुकेट करने के लिए, या फिर जब बाढ़ आ रहा हो या फिर साइक्लोन आ रहा हो या फेमाइन आ रहा हो, उस वक्त क्या करना है, लोगों को हेल्प करना है, क्लियर रहेगा। तो याद रखेंगे, वेरी फेमस स्वदेश बांधव समिति फॉर्म्ड बाय अश्वनी कुमार दत्ता।
उसी तरह अगला फीचर्स में याद रखेंगे, पॉपुलराइजेशन ऑफ फेस्टिवल्स, पॉपुलराइजेशन ऑफ फेस्टिवल्स। आपको पता ही है दुर्गा पूजा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ बंगाल। तो दुर्गा पूजा को यूज़ किया गया था टू क्या करने के लिए, नेशनलिस्टिक फीलिंग्स को बढ़ाने के लिए, कॉन्शियसनेस को बढ़ाने के लिए, और पार्टीशन ऑफ बंगाल को अपोज करने के लिए। तो ठीक है, तो उसी तरह से तिलक भाई साहब उन्होंने क्या किया था, उन्होंने महाराष्ट्र में गणेश फेस्टिवल्स, क्लियर है, उन्होंने गणेश फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज किया था कहाँ, इन महाराष्ट्र। तो याद रखेंगे स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट को स्प्रेड किया जा रहा है थ्रू द यूज़ ऑफ फेस्टिवल, जैसे कि बंगाल में आप कह सकते हैं दुर्गा पूजा, उसी तरह महाराष्ट्र में क्या कह सकते हैं, उन्होंने तिलक ने क्या लॉन्च किया था, गणेश फेस्टिवल। आज भी आपको पता ही है गणपति फेस्टिवल्स आर वेरी वेरी फेमस, साथ में शिवाजी का भी फेस्टिवल आप नोट कर सकते हैं, क्लियर रहेगा। तो दीज वर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट, जिसमें याद रखेंगे फॉर्मेशन ऑफ वॉलंटियर क्रॉप्स, उसी तरह से पॉपुलराइजेशन ऑफ फेस्टिवल्स, उसी तरह से स्वदेशीकरण ऑफ एजुकेशन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट आपसे पूछा जाए सर नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, तो क्या सिर्फ एजुकेशन का स्वदेशीकरण होगा या फिर इंडस्ट्रीज़ का भी स्वदेशीकरण होना चाहिए। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, स्वदेशीकरण और इंडियनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, क्लियर है। जैसे बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स हो रहा था, तो द नीड अरोज फॉर स्टार्टिंग आवर ओन टेक्सटाइल मिल्स, उसी तरह सोप, लेदर प्रोडक्ट्स, आयरन, स्टील एट्सेट्रा। तो आगे जानते हैं कि क्या क्या लॉन्च किया गया था। तो आप बिल्कुल याद रखेंगे, एक फेमस कंपनी है बंगाल में BCL नाम का, मतलब बंगाल केमिकल लिमिटेड, बंगाल केमिकल लिमिटेड या बंगाल केमिकल फैक्ट्री। इट वॉज स्टार्टेड बाय PC रे, प्रफुल्ल चंद्र रे के द्वारा स्टार्ट किया गया था। याद रखेंगे आपको पर्पस क्यों है, एडॉप्शन ऑफ स्वदेशी, इसी वजह से स्टार्ट किया गया था, क्लियर रहेगा। उसी तरह से आप क्या कह सकते हैं कि एक साउथ इंडिया में एक भाई साहब हैं जिनका नाम है चिदम्बरम पिल्लई। क्या नाम है, चिदम्बरम पिल्लई। उन्होंने क्या स्टार्ट किया था, स्वदेशी शिप कंपनी, मतलब हम लोग खुद अपनी जहाज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इट वॉज स्टार्टेड बाय चिदम्बरम पिल्ले इन साउथ इंडिया, मैड्रास प्रेसिडेंसी में, तूतीकोरिन में। नाम है स्वदेशी शिप कंपनी बाय चिदम्बरम पिल्लई, क्लियर रहेगा। इंडस्ट्री से ही जुड़ा हुआ है, आपको पता ही है टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील प्लांट वॉज स्टार्टेड बाय JRD टाटा। JRD टाटा ने उसी वक्त स्टार्ट किया था अराउंड 1908 में। जो आप जमशेदपुर टाटा में जो आप स्टील प्लांट देख रहे हैं वो JRD टाटा ने स्टार्ट किया था। ये भी आप कह सकते हैं रिजल्ट ऑफ स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। उसी तरह इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है साइंस टेक। साइंस टेक में आप देख सकते हैं JC बोस, मतलब जगदीश चंद्र बोस, इन्होंने किस चीज़ का डिस्कवरी किया था, चेकोग्राफ। JC बोस, जगदीश चंद्र बोस, ही स्टार्टेड और ही इन्वेंटेड चेकोग्राफ। चेकोग्राफ याद रखना है, ये क्या के लिए था, मेजर प्लांट के मूवमेंट को मेजर करता था। एंड JC बोस को आप कह सकते हैं रेडियो टेक्नोलॉजी में ही वॉज अ ग्रेट मास्टर, ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रोपोनेंट, और कह सकते हैं उस वक्त फादर ऑफ रेडियो टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी और इन्वेंशन ऑफ रेडियो वॉज गिवन टू इटालियन इन्वेंटर गुग्लियेमो मार्कोनी, राइट। मार्कोनी हम लोग पढ़ते हैं कि उसने क्या किया था, उसने रेडियो बनाया था, बट उनसे पहले जगदीश चंद्र बोस ही हिमसेल्फ वर्कड
और आप कह सकते हैं काफ़ी उन्होंने काम किया था रेडियो वेव्स में या फिर रेडियो टेक्नोलॉजी में, ठीक है। सो वी डिस्कस स्वदेशीकरण ऑफ इंडस्ट्रीज एज वेल। नेक्स्ट कम्स आर्ट एंड कल्चर। नेक्स्ट कम्स आर्ट एंड कल्चर। आप पढ़ रहे हैं इम्पैक्ट ऑफ स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट कहाँ पे, इन आर्ट एंड कल्चर में, क्लियर है। आर्ट एंड कल्चर बोलने पर आप बिल्कुल जैसे कि चाहे सॉन्ग हो गया, चाहे पेंटिंग हो गया, चाहे फिर ड्राइंग एट्सेट्रा हो गया, क्लियर है। तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि जो सॉन्ग के केस में रवीन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कंपोज किया था, आमार सोनार बांग्ला। आमार सोनार बांग्ला was composed during this time and it later became the very good कौसानी भारत माता पेंटिंग, वेरी गुड, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आमार सोनार बांग्ला was composed by रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, which later became the नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रविंद्रनाथ टैगोर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हैज़ हेल्प्ड इन द नेशनल एंथम ऑफ 3 कंट्रीज़। एक इंडिया आपको पता ही है, अमर सोनार बांग्ला, बांग्लादेश ये भी आपको पता है। वन ऑफ हिज स्टूडेंट एट शांति निकेतन ही कंपोज द नेशनल एंथम ऑफ श्रीलंका। तो रविंद्रनाथ टैगोर हेल्प्ड इन द composition of 3 national anthem, India, Bangladesh as well as Sri Lanka. What a great man, right? बंगाल में आपको पता ही है रविंद्रनाथ ठाकुर ऐसे करके उन्हें पॉपुलरली उनको मेंशन करते हैं। ही इज़ नोन फॉर हिज वर्सटिलिटी। उसी तरह से जैसे आपने कहा भारत माता, बिल्कुल आपने सही कहा है। भारत माता पेंटिंग वॉज डन बाय a person known as Abanindranath Tagore. अबनींद्रनाथ टैगोर। और इनके जानने के पहले ये बिल्कुल कहेंगे कि इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, इंडियन स्कूल ऑफ ओरिएंटल आर्ट। इंडियन स्कूल ऑफ ओरिएंटल आर्ट, प्लीज नोट इट डाउन। He formed the Indian School of Oriental Art in the year 1907। कब बनाया था, 1907। वेरी गुड कौसानी बाय अवनींद्रनाथ टैगोर। नाउ याद रखना है कि दिस सोसाइटी वॉज क्रिएटेड टू प्रमोट इंडियन स्कूल ऑफ पेंटिंग रैदर देन कंपनी और इंग्लिश स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो याद रखेंगे जो इंडियन स्कूल ऑफ ओरिएंटल आर्ट है, वाई वॉज इट फॉर्म, टू प्रोमोट स्वदेशी पेंटिंग। स्वदेशी पेंटिंग। आप पूछेंगे सर कौन कौन सा थीम क्या था इसका, तो थीम था राजपूत पेंटिंग, गॉड्स, इंडियन गॉड्स एंड गॉडेसेस एज वेल एज मुगल पेंटिंग, राइट। पहले के जो भी पेंटिंग थे इट वाज बेस्ड ऑन इंग्लिश थीम्स, इसलिए उनको कहते थे कंपनी स्कूल ऑफ पेंटिंग, उससे ज़्यादा इंस्पायर थे। तो ही ब्रॉट द इंडियनाइजेशन ऑफ इंडियन आर्ट, क्लियर है। उन्होंने पेंटिंग को क्या कर दिया, इंडियनाइज कर दिया। और जैसे आपने बिल्कुल कहा, ही हिमसेल्फ पेंटेड द फेमस पेंटिंग भारत माता, क्लियर है। नाउ आपने पढ़ा कि अवनींद्रनाथ टैगोर व्हाट ही फाउंडेड द इंडियन स्कूल ऑफ ओरिएंटल आर्ट अलॉन्ग विथ अनदर पर्सन। इनका भी नाम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट याद रखेंगे गगनेंद्र नाथ टैगोर। ही फाउंडेड इट विद द हेल्प ऑफ गगनेंद्र नाथ टैगोर। और याद रखेंगे इंडियन स्कूल ऑफ ओरिएंटल आर्ट के ये स्कॉलरशिप देती थी। तो फर्स्ट स्कॉलरशिप वाज गिवन टू नंदलाल बोस। फर्स्ट स्कॉलरशिप वाज गिवन टू नंदलाल बोस, ठीक है, ये हमें याद रखना है। नंदलाल बोस ने भी एक पेंटिंग पेंट की थी, इसका नाम है शिवा सती। प्लीज नोट इट डाउन। नंदलाल बोस हिमसेल्फ पेंटेड अ पेंटिंग नोन एज शिवा सती, क्लियर रहेगा। तो ये हमें याद रखना है।
जो हमने पहले पढ़ा था लिस्ट ऑफ कांग्रेस सेशन, उसमें हमने फैजपुर कांग्रेस सेशन, लखनऊ कांग्रेस सेशन पढ़ा था 1936 1937, राइट। तो आपको गांधी इनवाइटेड नंदलाल बोस टू ब्यूटिफाई द कांग्रेस सेशन और फिर डेकोरेट द कांग्रेस सेशन, ये हमने पहले भी कहा था। तो ये वही नंदलाल बोस हैं हु बिकेम द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ क्या, इंडियन स्कूल ऑफ ओरिएंटल आर्ट। क्लियर रहेगा। सो दीज वेर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट features of Swadeshi and boycott movement, which started as anti-partition movement due to the partition of Bengal coming into effect on October 16, 1905 by Lord Curzon। क्या हमें अभी तक क्लियर है कौसानी? बिल्कुल कमेंट बॉक्स में करेंगे, काइंडली कमेंट। Are we clear up to this front, the different features of Swadeshi and boycott movement? कोई डाउट हमें अभी तक? कैन यू हियर मी? थीम्स ऑफ स्वदेशी पेंटिंग में आप बिल्कुल लिख सकते हैं बेस्ड ऑन राजपूत पेंटिंग, मुगल पेंटिंग, इंडियन गॉड्स एंड गॉडेसेस, ये थीम था। तो ये सारा का सारा इंडियन है, ठीक, एंड इंडियन गॉड एंड गॉडेसेस, ठीक है। इसी कॉन्टेक्स्ट में अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत को पेंटेड एज अ भारत माता, तो वही ये थीम है, गॉड एंड गॉडेसेस, इंडियन गॉड एंड गॉडेसेस। क्लियर है? नाउ आर वी क्लियर अप टू दिस फ्रंट? ठीक है कौसानी, लेट्स मूव ऑन टू नाउ। आपको पता ही है वाई वी कॉल द न्यूज़पेपर एज द फोर्थ पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि उन्हें आर्टिकल 19(1) में क्या मिला हुआ है, फ्रीडम टू प्रिंट, राइट। तो इसके वजह से क्या होता है, दे पब्लिशेज क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज as well as whatever steps taken by the state which is not favorable for its citizen, right। तो इंडियन न्यूज़पेपर को इतना बड़ा दर्जा या फिर इतनी ज़्यादा रेस्पेक्ट क्यों दी जाती थी, इसका रीज़न है दे प्लेड अ ग्रेट रोल इन इंडियन नेशनल मूवमेंट। ये ब्रिटिश के रिएक्शनरी पॉलिसीज़, उनके एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज़ को लोगों तक पहुंचाते थे ताकि पीपल बिकम अवेयर ऑफ देयर वर्स पॉलिसीज़ एंड रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। और दीज वेयर द रीज़न, आप बिल्कुल कह सकते हैं वन ऑफ द रीज़न फॉर द आप कह सकते हैं रिमूवल ऑफ colonialism in India is the role played by nationalist newspaper। क्लियर है? तो इस पॉइंट से वी आर क्लियर दैट न्यूज़पेपर हैड प्लेड अ स्टेलर रोल इन द INM, मतलब इंडियन नेशनल मूवमेंट। उसी तरह से स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट में भी सम न्यूज़पेपर प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जैसे एक नाम तो हमने पहले ही कह दिया भाई, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, उनका न्यूज़पेपर का नाम था बंगाली। उसी तरह से और भी न्यूज़पेपर का नाम याद रखेंगे, जैसे कि अमृता बाजार पत्रिका। आप क्या लिख रहे हैं, रोल्स प्लेड बाय न्यूज़पेपर ड्यूरिंग SNB, इम्पॉर्टेंट रोल न्यूज़पेपर का। अमृता बाजार पत्रिका याद रखेंगे, इट हैज़ बीन स्टार्टेड बाय It was started by Motilal Ghosh। Please note it down, started by Motilal Ghosh। और अगर एक्स्ट्रा नाम आप ऐड करना चाहेंगे तो शिशिर कुमार घोष। क्लियर? स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट के बिकॉज इट क्रिएट्स पब्लिक ओपिनियन, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, एक पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करती है। और अगर वो पब्लिक के खिलाफ रहती है पॉलिसीज, देन इट कैन lead to the removal of policies by the government or criticism of the government। ठीक है,
तो अमृता बाजार पत्रिका याद रखना है, फाउंडेड बाय मोतीलाल घोष एंड शिशिर कुमार घोष। उसी तरह से और न्यूज़पेपर, कौन इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर था? इंडियन मिरर। अदर न्यूज़पेपर विच प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल, इंडियन मिरर। इंडियन मिरर में याद रखेंगे, इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड बाय मनमोहन घोष। इंडियन मिरर वॉज स्टार्टेड बाय मनमोहन घोष। अगर आप एक एक्स्ट्रा नाम ऐड करना चाहेंगे इसमें, तो देवेंद्र नाथ टैगोर का नाम बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। क्लियर है? और कौन सा न्यूज़पेपर था? हिंदू पेट्रियट। हिंदू पेट्रियट हमने पहले ही पढ़ा है। हिंदू पेट्रियट ड्यूरिंग, क्या हमें कौशानी याद है हिंदू पेट्रियट हमने कब पढ़ा था? ठीक है, ज़्यादा समय बर्बाद करते हुए ना करते हुए इसको जानते हैं कि हिंदू पेट्रियट जो था हमने पढ़ा था ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन में। इसके एडिटर कौन थे? हरीश चंद्र मुखर्जी, SCM, राइट। तो ये हिंदू पेट्रियट उस वक्त जो स्टार्ट किया गया था। ठीक है, वेरी गुड कौसानी। हरीश चंद्र मुखर्जी वॉज इस एडिटर। ठीक है, उसी तरह से और आप न्यूज़पेपर याद रखेंगे, जैसे कि नाम है हिताब्दी। न्यूज़पेपर का नाम है हिताब्दी। आप बोलेंगे सर हु स्टार्टेड दिस न्यूज़पेपर हिताब्दी, तो आप याद रखें कृष्ण कमाल भट्टाचार्य। याद रखेंगे नाम, हिताब्दी न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय कृष्ण कमाल भट्टाचार्य। ठीक है, तो दीज वे सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर विच आप कह सकते हैं विच वॉज कनेक्टेड टू और डायरेक्टली पार्टिसिपेटेड इन द एंटी पार्टीशन मूवमेंट इन बंगाल। क्लियर? नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज क्या? पार्टीशन ऑफ बंगाल में लोगों ने कौन कौन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? तो डिड स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन दिस मूवमेंट और डिड दे जस्ट केप्ट ऑन गोइंग टू देयर स्कूल्स एंड कॉलेजेस? तो आप बिल्कुल कह सकते हैं स्टूडेंट्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन ह्यूज नंबर इन द एंटी पार्टीशन मूवमेंट। ठीक है, उसी तरह आपसे पूछा जाए क्या वुमेन पार्टिसिपेटेड? सारे वुमेन पार्टिसिपेटेड इन एंटी पार्टीशन मूवमेंट। तो यहाँ पे ये कहना गलत होगा कि ऑल वुमेन पार्टिसिपेटेड। ऐसा इसलिए क्योंकि वुमेन पर्टिकुलरली फ्रॉम द अपर एजुकेटेड क्लास दे पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट। जो पीपल फ्रॉम द खासकर जो लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लासेस या फिर अनएजुकेटेड, दे रिमेंड अलूफ फ्रॉम द मूवमेंट। वो अवेयर ही नहीं थे मूवमेंट के बारे में। तो बिल्कुल याद रखेंगे अपर एजुकेटेड क्लास के जो वुमेन थे दे पार्टिसिपेटेड। क्लियर रहेगा? तो याद रखेंगे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मास पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। कौन कौन कैटेगरीज या डाइवर्सिटी के लोग पार्टिसिपेट किए इस मूवमेंट में? तो स्टूडेंट्स लार्ज नंबर, वुमेन इन लार्ज नंबर बट रेस्ट्रिक्टेड टू अपर एजुकेटेड। आप बिल्कुल याद रखेंगे इस स्टेटमेंट में कि फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन नेशनल मूवमेंट में द इंडियन वुमन हैज़ कम आउट ऑफ द फोर वॉल्स ऑफ देयर हाउस। अब ये बोलने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, पहली बार इंडियन वुमेन अपने घर से निकली है ऑन द स्ट्रीट्स टू रिवोल्ट और फाइट, और फिर आप कह सकते हैं प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो याद रखेंगे इंडियन वुमेन कमिंग ऑन द स्ट्रीट्स फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम द फोर वॉल्स ऑफ देयर हाउस। उसी तरह से इफ़ फर्दर आस्क डिड मुस्लिम पार्टिसिपेट इन लार्ज नंबर, ये भी टिक मार्क है, वीमेन भी टिक मार्क है। तो क्या मुस्लिम पार्टिसिपेट किए? ये टिक मार्क नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है कि ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है वो कर्जन के रिएक्शनरी या फिर डिवीजिव पॉलिसी के अंतर्गत बनाया गया था, जिसमें कर्जन वांटेड टू डिवाइड बंगाल ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। हिंदूज़ के लिए अलग प्रोविंस रहेगा
और मुस्लिम्स के लिए ईस्ट बंगाल विद ढाका एट इट्स कैपिटल अलग प्रोविंस रहेगा। तो ऑब्वियसली जो मुस्लिम्स हैं दे वोंट बी पार्टिसिपेटिंग इन लार्ज नंबर। तो याद रखेंगे मुस्लिम पार्टिसिपेशन लो, ये बिल्कुल कहने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, मुस्लिम पार्टिसिपेशन लो। क्लियर रहेगा। सो वी डिस्कस द पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट categories of people in Swadeshi and boycott movement. Now if I have to ask, did partition of Bengal continued forever or was it like discontinued, या इसको कैंसिल कर दिया गया या सस्पेंड कर दिया गया, क्या हुआ इसके साथ पार्टीशन ऑफ बंगाल मूवमेंट के साथ, एंटी पार्टीशन मूवमेंट के साथ? तो आपसे अगर पूछा जाए कौसानी कि एंटी पार्टीशन मूवमेंट या फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल मूवमेंट वाज इट कैंसल्ड और डिड इट कंटिन्यू और व्हाट डिड हैपन, तो आप क्या बोलेंगे? विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम याद रखना है हमें कि पार्टीशन ऑफ बंगाल का क्या कर दिया गया था, एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, और द पार्टीशन ऑफ बंगाल को क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। सही कह रहे हैं, इट वाज स्टॉप। एनलमेंट मतलब होता है स्टॉप कर देना, ख़त्म कर देना। एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, लेकिन 6 साल बाद इन द ईयर 1911, ये हमें याद रखना है। बंगाल का पार्टीशन रोक दिया गया इन द ईयर 1911। और याद रखना कौन थे वॉइसरॉय, लॉर्ड हार्डिंज दो। सो क्वेश्चन कम्स, हु वाज द वॉइसरॉय व्हेन annulment of Bengal partition of Bengal took place? आंसर इज लॉर्ड हार्डिंज टू। क्लियर रहेगा, ये हमें याद रखना है, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नाउ आप पूछेंगे सर तो फिर मुस्लिम्स जो जो पहले खुश थे पार्टीशन ऑफ बंगाल से, उनका क्या हुआ होगा? तो इसके लिए इसके पास लॉर्ड हार्डिंज ने तरीका निकाला कि वी विल कैंसल द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1911, लेकिन in order to appease the Muslim, what we will do is that we will transfer the capital of British India from Calcutta to Delhi। तो कैपिटल ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल हो रहा है टू दिल्ली, कहाँ से, फ्रॉम कैलकाटा। तो मुस्लिम्स को खुश करने के लिए कैपिटल को ट्रांसफ़र कर दिया गया फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली इटसेल्फ इन द ईयर 1911। आप पूछेंगे सर वाई, हाउ डिड मुस्लिम बिकम हैप्पी व्हेन कैपिटल वाज ट्रांसफर्ड? तो आपको पता ही है, दिल्ली वाज एसोसिएटेड विथ मुगल नोबिलिटी। मुस्लिम्स जो मुगल्स थे दे यूज्ड टू रूल इन इंडिया फ्रॉम दिल्ली। सो इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द मुस्लिम विथ द मुगल नोबिलिटी, ताकि दे टेक प्राइड अगेन, इट वाज ट्रांसफर टू दिल्ली। क्लियर? तो ये हमें याद रखना है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल। क्या ये हमें याद रहेगा? जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौशानी, आर वी क्लियर विद द पार्टीशन ऑफ बंगाल? क्या हमें पूरा समझ में आया है? क्या हमें कोई डाउट है इसमें? डाउट है इसमें? आप कह रहे यस सर। ठीक है, वेरी गुड कौसानी। तो दिस कम्स टू एन एंड ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल। इसमें आप क्या क्या याद रखेंगे इन शॉर्ट में? इसका डेट अक्टूबर 16, 1905 को ये क्या आया था, केम इनटू इफेक्ट हुआ था। प्रोटेस्ट इनिशियली मॉडरेट लीडर सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के द्वारा, बाद में 1905 के बाद ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर के हाथ में आ गया था, क्योंकि पैसिव रेजिस्टेंस फॉलो किया जा रहा था, राइट, बॉयकॉट।
मोडस ऑपरेंडी आपको पता ही है, पैसिव रेजिस्टेंस, स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट इसका पिलर्स था। इसका इम्पैक्ट डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ सोसाइटी में था, जैसे कि आर्ट एंड कल्चर, जैसे कि एजुकेशन, जैसे कि इंडस्ट्रीज़, जैसे कि फेस्टिवल्स एंड वॉल्टियर कॉप। वॉल्टियर कॉप में याद रखेंगे स्वदेश बांधव समिति अश्विनी कुमार दत्ता के द्वारा ये बनाया गया था, याद रखना है। क्या के लिए? रिलीफ वर्क के लिए, जैसे फेमाइन, साइक्लोन एट्सेट्रा। उसी तरह से आप याद रखेंगे कि पॉपुलर फेस्टिवल को यूज़ किया गया ताकि स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट को क्या किया जाए, स्प्रेड किया जाए। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में गणपति और शिवाजी फेस्टिवल, बंगाल में दुर्गा पूजा वॉज यूज एज ए मीडियम। उसी तरह से एजुकेशन में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बाई सतीश चंद्र मुखर्जी करेंगे, और वही आप जादव यूनिवर्सिटी बना हुआ है, याद रखना है, बंगाल नेशनल कॉलेज बाई अरविंदो घोष with as his first principal. Bengal National College was inspired from रविन्द्रनाथ टैगोर शांति निकेतन। क्लियर रहेगा। उसी तरह से इंडस्ट्री में याद रखेंगे बंगाल केमिकल फैक्ट्री बाय पीसी रे। फिर इन्वेंशंस में जगदीश चंद्र बोस, रेडियो वेव्स में उन्होंने काम किया था, चेकोग्राफ। उसी तरह से साउथ इंडिया में स्वदेशी कंपनी, स्टीम कंपनी या शिप कंपनी, चिदम्बरम पिल्लई। ठीक है, ये याद रहेगा हमें। उसी तरह से आर्ट एंड कल्चर में इंडियन पेंटिंग को पॉपुलराइज किया गया, थीम ज़्यादा बनाया गया, किसके द्वारा? अवनींद्र नाथ टैगोर के द्वारा। जैसे आपने कहा भारत माता को पेंट किया गया, उसी तरह इन्होंने एक सोसाइटी बनाई थी, इंडियन स्कूल ऑफ ओरिएंटल आर्ट, इन द ईयर 1907 विद द हेल्प ऑफ गगनेंद्र नाथ टैगोर, एंड मिस्टर नंदलाल बोस बिकेम द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द स्कॉलरशिप, एंड नंदलाल बोस की पेंटिंग का नाम है शिवा सती। ठीक है, सो दिस वी डिस्कस्ड इन क्वाइट एक्सटेंसिवली अबाउट पार्टीशन ऑफ बंगाल। क्लियर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी इन बंगाल या फिर इन इंडिया, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। लेकिन इस टॉपिक को करने के पहले हम लोग कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कर लेते हैं रिगार्डिंग लॉर्ड कर्जन्स रिएक्शनरी पॉलिसीज़। वी ऑल नो लॉर्ड कर्जन क्रॉस कर चुके हैं, उन्होंने कुछ रिएक्शनरी पॉलिसीज़ बनाया था, जैसे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जैसे कि आर्म्स एक्ट, जैसे कि दिल्ली दरबार होल्ड किया था। तो ये सब कुछ एक बार डिस्कस करना एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। तो जल्दी से शॉर्ट में हम लोग क्या करेंगे, वी विल डिस्कस लॉर्ड लिटन्स पॉलिसीज़। क्लियर रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट। लॉर्ड लिटन आपको पता ही है, वन ऑफ द मोस्ट रिएक्शनरी वॉइसरॉय इन इंडिया। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, लॉर्ड लिटन रिएक्शनरी पॉलिसीज़। ठीक है। नाउ सबसे पहले आप बिल्कुल कह सकते हैं कि एक फैमाइन चल रहा था उनके टाइम में, तो पॉलिसीज़ में एक बिल्कुल कहेंगे पहला, उस वक्त इंडिया में मैसिव फैमाइन, मिलियंस ऑफ पीपल वे किल्ड इन दोज फैमाइंस। फैमाइन का टाइम पीरियड आप याद रखेंगे कब से कब, 1876 से 1878। द फैमाइन वॉज continuing in India from 1876 to 1878. Millions of people were dying, perishing in this famine. famine का जो एपी सेंटर था वो था बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, सेंट्रल प्रोविंस जो मध्य प्रदेश वाला रीजन है, और माइजोर रीजन साउथ इंडिया का। तो दीज वेर द रीजन, राइट। नाउ यहाँ पे खाली याद रखेंगे टू इंक्वायर इनटू द रीजन्स ऑफ द फेमाइन, या फिर उसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप्स पर ध्यान देने के लिए लॉर्ड लिटन ने एक कमीशन बनाया था जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। कमीशन का नाम है स्ट्राची कमीशन। तो स्ट्राची कमीशन वॉज फॉर्म्ड बाय लॉर्ड लिटन। वेरी गुड कौशानी। स्ट्राची कमीशन वॉज फॉर्म्ड बाय लॉर्ड लिटन, क्या के लिए? टू सी और इंक्वायर इनटू द रीजंस फॉर द फेमाइन एज वेल एज टू एलिविएट, मतलब जो फेमाइन की प्रॉब्लम थी उसको कम किया जाए, रिड्यूस किया जाए। क्लियर। उसी तरह से अगला रिएक्शनरी पॉलिसीज़ देख लेते हैं लॉर्ड लिटन का, एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रॉयल्स टाइटल एक्ट 1876।
अगला है रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876। आप पूछेंगे सर व्हाट इज़ दिस एक्ट, आप नाम से देख रहे हैं रॉयल टाइटल छिपा हुआ है कि नहीं। तो रॉयल टाइटल मतलब इसमें उस वक्त की जो क्वीन थी इंग्लैंड की, या फिर अब क्या नाम है, क्वीन विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया को क्या का टाइटल मिला था, केसरे हिंद, एम्प्रेस ऑफ इंडिया। क्लियर। तो अंडर रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876 में क्या हुआ था, क्वीन विक्टोरिया वॉज गिवन द टाइटल ऑफ केसरे हिंद। केसरे हिंद मतलब याद रखेंगे एम्प्रेस ऑफ इंडिया। शी वॉज नॉट ओनली द एम्प्रेस ऑफ ब्रिटेन बट ऑल्सो इंडिया। क्लियर रहेगा। नाउ जो मिस्टर लिटन है उन्होंने क्या किया, इन ऑर्डर टू सेलिब्रेट दिस केसर हिंद टाइटल, उन्होंने एक दिल्ली दरबार होल्ड किया। ही हेल्ड दिल्ली दरबार इन द ईयर 1877। कब उन्होंने दिल्ली दरबार होल्ड किया था, 1877 में। उसमें भाई साहब मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ रुपीस को स्पेंड किया वाइल पीपल वॉज सफरिंग फ्रॉम फेमाइन। तो ये बिल्कुल गलत है, एथिकल नहीं है किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, मोरली करप्ट ये स्टेप था, जहाँ पे इंडियन पीपल आर सफरिंग फ्रॉम फेमाइन एंड यू आर होल्डिंग दिल्ली दरबार इन ऑर्डर टू क्या करना है, इम्प्रेस क्वीन विक्टोरिया, राइट। तो वन ऑफ द रिएक्शनरी पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड लिटन। क्लियर। उसी तरह से आपको पता ही है अगला रिएक्शनरी पॉलिसीज है VPA 1878। क्या है फुल फॉर्म कौसानी VPA का, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नहीं, एग्जिबिशन नहीं कहेंगे इसको कौसानी। द दिल्ली दरबार वॉज एन एग्जीबिशन ऑफ, मतलब हाँ, अगर आप कहेंगे कि सर क्या इसमें एग्जीबिशन ऑफ द पीपल थे जिसमें इंडियन प्रिंस स्टेट के मेंबर्स या फिर इंडियन प्रोविंसेस के मेंबर या फिर आसपास के जो कंट्रीज़ है भारत के नेबर्स वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव इसमें आ रहे हैं, तो बिल्कुल यस, इट वॉज एन एग्जीबिशन। और फिर आप कह सकते हैं अटेंडेंस बाय द रिच Indian princely state members as well as from Indian provinces as well as from neighboring countries and they all wanted क्या करें, coronation करवा रहे हैं क्वीन विक्टोरिया के as a empress of India, as a केसरे हिंद। क्लियर रहेगा। इसमें there was a display of horses, display of elephants, display of jewelries, display of cooking utensils, display of आर्टिफैक्ट्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये था ग्रैंड दिल्ली दरबार जिसमें मिलियंस एंड मिलियंस वाज स्पेंट वाइल इंडिया वाज सफरिंग फ्रॉम फेमाइन। ठीक है, तो याद रखेंगे। उसी तरह से नेक्स्ट रिएक्शनरी पॉलिसी आपको पता ही है, वर्नाकुलर प्लेस एक्ट। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसका रिएक्शनरी पॉलिसी माना जाएगा। आप पूछेंगे सर क्या है वर्नाकुलर प्लेस एक्ट, नाम से ही लग रहा है वर्नाकुलर मतलब कोई भी अगर इंडियन न्यूज़पेपर अपनी जो मैगजीन्स हैं या जर्नल्स हैं इंडियन लैंग्वेज या फिर वर्नाकुलर लैंग्वेज में अगर पब्लिश करती है तो उसको क्या कर लेना है, कॉन्फिस्केट, मतलब जब्त कर लेना है। क्लियर रहेगा। नाउ अथॉरिटी किसको दिया गया है जर्नल या न्यूज़पेपर को जब्त करने का, कॉन्फिस्केट करने का, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन आएगा तो ये हमें याद रखना है। डीएम को दिया गया है कि वो किसके साथ, पब्लिशर के साथ एक बॉन्ड बना के रखेंगे। द डीएम विल क्या करेंगे, विल एंटर इनटू अ बॉन्ड or an agreement with the publisher that nothing is printed against the British। क्लियर रहेगा। तो याद रखेंगे ब्रिटिश के खिलाफ कुछ भी प्रिंट नहीं होना चाहिए और ये एक इन्होंने आपस में एग्रीमेंट बना रखा है। और इसके लिए डीएम भाई साहब क्या लिए हुए हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट। अगर इन्होंने कुछ छापा तो इनका सिक्योरिटी डिपॉजिट से क्या करना पड़ेगा, हाथ धोना पड़ेगा। तो ये हमें याद रखना है। उसी तरह से याद रखेंगे कि
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आप बिल्कुल कह सकते हैं ये एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन है बिटवीन जो वर्नाकुलर में छाप रहे हैं या फिर इंडियन रीजनल लैंग्वेजेस में जो न्यूज़पेपर छाप रहे हैं और किसके बीच में, जो इंग्लिश एंग्लो इंग्लिश में न्यूज़पेपर छाप रहे हैं। क्लियर रहेगा, तो ये हमें याद रखना है कि इट्स अ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द एंग्लो न्यूज़पेपर एज वेल एज द वर्नाकुलर न्यूज़पेपर। क्लियर रहेगा। इसका अदर कंडीशन याद रखें, ईयर याद रखेंगे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक एग्रीमेंट में आते हैं किसके साथ, पब्लिशर के साथ बॉन्ड साइन करते हैं कि अगर आप हमारे खिलाफ कुछ छापेंगे तो आपके न्यूज़पेपर को भी जब्त कर लिया जाएगा, आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट को भी क्या कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। इसी कॉन्टेक्स्ट में आपको पता ही है कि जो अमृता बाजार पत्रिका है वो रातों रात कन्वर्टेड इटसेल्फ इनटू अ इंग्लिश न्यूज़पेपर, एंग्लो न्यूज़पेपर। क्लियर रहेगा, तो याद रखेंगे अमृता बाजार पत्रिका। हमने पहले ही कहा था कि अमृता बाजार पत्रिका क्या है, इट वॉज स्टार्टेड बाय होम, बाय मोतीलाल घोष एंड शिशिर कुमार घोष। याद रखना है। और हमने पहले ही पढ़ा है शिशिर कुमार घोष ने, उन्होंने एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। क्या आप बता सकते हैं कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द पॉलिटिकल एसोसिएशन स्टार्टेड बाय शिशिर कुमार घोष? इंडियंस से स्टार्ट होता है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड बाय शिशिर कुमार घोष? वेरी गुड, इंडियन लीग 1875। वेरी गुड कौसानी। नाउ तो क्या है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में रातों रात अमृता बाजार पत्रिका इन ऑर्डर टू बी कॉन्फिस्केटेड वॉज कन्वर्टेड इटसेल्फ इनटू अ एंग्लो न्यूज़पेपर। क्लियर रहेगा, ये हमें याद रखना है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आप बिल्कुल कह सकते हैं ये न्यूज़पेपर जो कि ब्रिटिश के खिलाफ पॉलिसीज़ या छापते थे उनको क्या करने की कोशिश कर रहा है, गैग करने की कोशिश कर रहा है, मतलब उनको रोकने की कोशिश कर रहा है। इसलिए याद रखेंगे, एग्जाम के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गैगिंग एक्ट भी कहते हैं। प्लीज नोट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इज रेफर्ड एज गैगिंग एक्ट। क्लियर है। उसी तरह से याद रखेंगे अनदर एंड लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, पॉलिसी ऑफ लॉर्ड लिटन, आर्म्स एक्ट 1878। द नेक्स्ट इज आर्म्स एक्ट 1878। आप पूछेंगे कि सर क्या है इस पॉलिसी में या फिर इस लॉ में, तो इंडियंस को अगर हथियार खरीदने हैं या फिर बेचने हैं या फिर रखना है तो उनको लाइसेंस या परमिशन लेना पड़ेगा, जो कि ये ब्रिटिश या इंग्लिश वालों को ये नहीं था। तो ये क्लियर डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी है। बिल्कुल आप कह सकते हैं इंडियंस नीडेड लाइसेंस, किस चीज़ के लिए, टू सेल और परचेज फायर आर्म्स। क्लियर, टू सेल और परचेज फायर आर्म्स याद रखेंगे। और इसमें आप बिल्कुल आप कह सकते हैं कि ये एप्लीकेबल इंग्लिश पे एप्लीकेबल या एंग्लो लोगों पे एप्लीकेबल नहीं था। तो क्लियर कट आर्म्स एक्ट वाज अ डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वी हैव डिस्कस्ड few important topics like partition of Bengal as well as different reactionary policies of Lord Lytton such as Arms Act 1878, Vernacular Press Act 1878, holding of Royal Darbar under Royal Titles Act in 1877, etc. Clear? And also क्या करना, एक्सपेंडिचर करना ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ फैमाइन। क्लियर है। तो कौसानी, कैन वी स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी या फिर छोड़ देते हैं, विल डू इन द नेक्स्ट क्लास? शैल वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी इन इंडिया, और डू वी लीव फॉर द नेक्स्ट क्लास, विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास?
The keys lies in your hand. Very good. Let's start with the revolutionary activity. नाउ नाम से क्या लग रहा है, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी। तो ये हमें बिल्कुल याद रखना है कि जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी है ये इट सपोर्ट्स या फिर कह सकते हैं प्रोमोट्स वायलेंस। तो हमने ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं कि मॉडरेट्स क्या थे, जो 3 P's के सपोर्टर थे। एक्सट्रीमिस्ट क्या थे, जो पैसिव रेजिस्टेंस के सपोर्टर थे। एंड जो नेक्स्ट ग्रुप हैं जिनका नाम है रेवोल्यूशनरी, वो सीधे और सीधे किस पे सपोर्टर हैं, वायलेंस। तो आप देख सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन दिस 3 कैटेगरीज ऑफ पीपल, वन मॉडरेट, दूसरा एक्सट्रीमिस्ट एंड तीसरा रेवोल्यूशनरी। जो मॉडरेट्स हैं बिलीव्ड इन 3 P's, एक्सट्रीमिस्ट बिलीव्ड इन पैसिव रेजिस्टेंस, बॉयकॉट एटसेट्रा, एंड रेवोल्यूशनरी बिलीव्ड इन वॉयलेंस। नाउ रेवोल्यूशनरी का जो मॉडस ऑपरेंडाई है, इसको आरए लिखेंगे शॉर्ट में, रेवोल्यूशनरी या रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी, आरए इन शॉर्ट है। इनका जो मॉडस ऑपरेंडाई है, ये लोग कैसे काम करते हैं, आईएचए से। आप पूछेंगे सर क्या होता है इसका मतलब, इसका फुल फॉर्म है इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन। तो जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी है या फिर रेवोल्यूशनरीज हैं, दे बिलीव इन इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन। मतलब वो क्या कहते हैं, अकेले किसी पुलिस ऑफिसर्स को टारगेट करेंगे, उनको मारने की कोशिश करेंगे। तो क्लियर रहेगा, IHA उसमें क्या करेंगे, क्या इन्वॉल्व रहेगा, किलिंग ऑफ रिएक्शनरी ब्रिटिश ऑफिसर्स या ब्रिटिश पर्सन। क्लियर, उसमें इन्फॉर्मर्स को भी मारना, वो इन्फॉर्मर्स को भी क्या कर सकते हैं, मार सकते हैं। क्लियर रहेगा। सो मोडस ऑपरेंडाई ऑफ रेवोल्यूशनरी हैं, दे यूजेस क्या, वायलेंस, इनका फॉर्म है वायलेंस, और इनका वे है इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन। इंडिविजुअली वो मारने की कोशिश करेंगे, मास मूवमेंट में बिलीव नहीं करते हैं। याद रखेंगे, नॉट वायलेंस एट अ मास लेवल, जैसे गांधीयन मूवमेंट होता है उसी तरह से। क्या इसमें क्या है इंडिविजुअल एक्शन में, किलिंग ऑफ रिएक्शनरी ब्रिटिश ऑफिशियल्स एज वेल एज इन्फॉर्मर्स एटसेट्रा। नाउ द पॉइंट इज, ये जो रिवॉल्यूशनरीज हैं या रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी हैं, ये कहाँ से इंस्पायर्ड थे, इनका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। तो आप बिल्कुल कह सकते हैं एक सोर्स है निहिलिज्म और दूसरा सोर्स है आयरिश नेशनलिज्म। आप बोलेंगे सर ये सब क्या हम लोग उल्टा पुल्टा पढ़ रहे हैं, व्हाट इज़ निहिलिज्म, व्हाट इज़ आयरिश नेशनलिज्म, राइट। तो आप बोलेंगे इसका हम लोग बिल्कुल इस डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि what are the concept of nihilism and what is Irish nationalism and how they are linked to the rise of revolutionary activity in India। ठीक है। now nihilism को आप बिल्कुल कह सकते हैं ये एक आइडियोलॉजी है या फिलॉसफी है। निहिलिज्म क्या है, एक फिलॉसफी है विच इज़, आप कह सकते हैं जो स्केप्टिसिज्म का फिलॉसफी है। निहिलिज्म इज़ अ फिलॉसफी ऑफ स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म मतलब होता है डिनाइल ऑफ एनी बिलीफ इन सोसाइटी, चाहे सोसाइटी के रिलीजियस बिलीफ हो, चाहे वो पॉलिटिकल बिलीफ हो, सब चीज़ के डिनाइल को क्या कहते हैं, निहिलिज्म कहते हैं।
तो आप बिल्कुल याद रखेंगे फिलॉसफी ऑफ स्केप्टिसिज्म, जिसमें डिनायल ऑफ रिलीजियस, पॉलिटिकल या फिर सोसाइटल बिलीफ, ठीक है। सो आप कह सकते हैं कि दीज गाइज आर क्लोजर टू एनार्किज्म, ठीक है। नाउ ये हो गया निहिलिज्म। व्हाट इज निहिलिज्म? उसी तरह टू आंसर द सेकेंड वन, आयरिश नेशनलिज्म। आयरिश नेशनलिज्म में याद क्या रखना है आपको कि जैसे इंग्लैंड या ब्रिटेन हमें क्या कर रखा था, बंदी बना कर रखा था, हमें कॉलोनियलाइज करके रखा था, उसी तरह से इंग्लैंड ने आयरलैंड को भी क्या कर रखा था, सप्रेस कर रखा था। क्लियर रहेगा? तो अगर आयरलैंड आपको पता है उसका कैपिटल छोटा सा कंट्री है जिसका कैपिटल है, उन लोग आयरिश ऐसे डबलिन बोलेंगे, उन लोग आयरिश लोग डुबलिन बोलते हैं, राइट। तो डुबलिन उनका कैपिटल था। तो ऑब्वियसली अगर इंग्लैंड इनके कंट्री को कैप्चर करेगा तो इनके खिलाफ लोग लड़ेंगे। जो लड़ते थे उनको क्या कहते थे, आयरिश नेशनलिस्ट। और आप देखेंगे लेटर इन 1920s इन्होंने एक आर्मी भी बनाई थी जिसका नाम है आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, और ये बहुत ज़्यादा इंग्लैंड खासकर लंदन पे अटैक करते रहते थे, ठीक है। सो आप बिल्कुल कह सकते हैं दीज टू वेयर द मेजर फैक्टर विच लेड टू द राइज ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी इन इंडिया। एक है निहिलिज्म की फिलॉसफी और दूसरा है राइज ऑफ आयरिश नेशनलिज्म अगेंस्ट द ब्रिटिश, ठीक है। तो इन द आगे क्लास में हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके जानेंगे व्हाट आर द डिफरेंट रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ विच ऑकर्ड इन इंडिया। आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड इनफ, चाहे पार्टीशन ऑफ बंगाल या फिर लॉर्ड लिटन्स रिएक्शनरी पॉलिसी, एज वेल एज वी हैव स्टार्टेड द बेसिक ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी इन इंडिया। तो ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द क्लास टुडे। विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। गुड नाइट।